So, good morning, students. We are studying unit number 3 of the subject Renewable Energy Technology. Subject code ME604C. So far, we have discussed the basic introduction about biomass. We have seen what are the various types of biomass and how we can obtain them. In this lecture, we will discuss the method of biomass conversion. Okay. So in this slide, you can see the energy content available with the various biomass. You can see the wood chips, sawmill dust of forest residues. That means main component is wood chip. So that has been either directly burned. Biofuel here, you can see the biofuel is direct heat. That means it has been combustion of the wood chip have been taken place. And this much amount of energy we can obtain by the direct combustion or incineration of the wood chips, sawmill dust or forest residues. That is 16 to 20 megajoule per kg. On the other hand, if we convert these biomass resources into gas, oil, or char using pyrolysis section, then we pyrolysis or gasification technology, then we can obtain the higher energy content with the same biomass. So here we can see that it is the wood chip which has been burned or incineration of the wood chip have been taken place. In that case, the biomass available, energy available is 16 to 20 megajoule per kg. But when that wood chip has been converted into gas by suitable gasification technology, then the amount of energy is around 40 megajoule per kg. Similarly, if pyrolysis of the wood chip has been done and a liquid is obtained or oil is obtained, then that oil is having energy content as 40 megajoule per kg. So this is just twice the energy available by the direct combustion or incineration. Okay. So this slide provides the basic differences about the biomass resources when these are converted into suitable forms by using different technologies for obtaining different energy content. We can see that by gasification or pyrolysis, we can obtain the more heat in comparison to direct combustion or incineration by using the same biomass resource. Then grain crops is used as biomass fuel, biofuel. Here straw is used, and by direct combustion or incineration, we can obtain energy as 14 to 16 megajoule per kg. So there are different types of biomass resources. By using suitable conversion technologies, we can obtain different kinds of energy available to us. It depends upon us how we want to utilize that biomass for obtaining energy, because the different technologies have different cost associated with it. Incineration is direct combustion. It does not require any amount of any other added cost. But on the other hand, if we do pyrolysis or gasification, then we have to use sophisticated instruments. That's why some cost is associated with this pyrolysis or gasification technology. But we are getting more energy content from the same biomass. So it is up to us whether we want to go for incineration, gasification, pyrolysis, or other processes for obtaining energy from biomass. Okay. So यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो. नो डाउट. आगे चलते हैं यहाँ पर. Now we have to see what are the or discuss what are the various methods for conversion of biomass into useful biomass fuel or biofuel. So you can see there are 4 ways to convert biomass as a biofuel. One is physical method. This method requires the use of mechanical force for conversion of available biomass either into pellets, briquettes, or expelling the agricultural products. Okay, so it requires use of mechanical force for making pellets, briquettes, or expelling the agriculture products to obtain a biofuel.
Second method is incineration. Incineration is the direct combustion of the biomass in presence of oxygen. And then there is thermochemical. By using this, some heat is applied for conversion of biomass into biofuel. Similarly, there is biochemical techniques in which bacteria are used for anaerobic digestion for gasification of the available biomass into biogas. So basically 4 methods are there. We have seen different kinds of biomass, like there is crop residue, there's trees, buds, and there are other aquatic products are also, which are used for conversion of biomass into biofuel. Okay, so here are the 4 methods. Physical method, which includes pelletization, briquetting, expelling. Then there is incineration also, thermochemical and biochemical. Now we will see each of these processes in detail. First is physical method. Fuel oils can be extracted from plant products by expelling them. So this is third method. Fuel oils can be extracted from the plant products by expelling them. While doing this, we can expel nut, we can expel leaf, we can expel seeds also. So there are different kinds of methods available for expelling agro products. Light hydrocarbons may be obtained from certain plants in the same way as production of rubber. Now there are other methods which are used for conversion of biomass into biofuel includes pelletization and briquetting also. So what is pelletization? Do you know what is pellet or briquette? आप लोगों ने कहीं देखा है कोई pellet या briquette का नाम सुना हुआ है? Anyone? किसी ने नहीं सुना? आप लोगों ने पैलेट से ब्रैकेट का नाम नहीं सुना हुआ है? एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पास अवेलेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है या वुड्स हैं या कोई दूसरी चीज है, उस केस में एनर्जी कंटेंट उसका कम होता है. बट यदि इसको हम पल्वराइज कर देते हैं, उसके बाद उसको कंप्रेस करते हैं, तो उस केस में जो अवेलेबल प्रोडक्ट हमको मिलता है दैट इज आइदर पैलेट और ब्रिकेट. दोनों लगभग एक ही चीज होती हैं, बिकॉज एक्सट्रूजन इज रिक्वायर्ड फॉर पैलेटाइजेशन एज वेल एज ब्रिकेटिंग. There is difference in dimensions of a pellet and briquette. You can see subsequent slide also in the which discusses our differences in pellets and briquette. But दोनों लगभग एक ही चीज होती हैं. हमको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रूजन जैसी कुछ प्रोसेस अपनानी पड़ती है, जिसकी वजह से जो अवेलेबल या पल्वराइज्ड बायोमास है उसका हम डेंसिफिकेशन करते हैं, उसकी डेंसिटी इंप्रूव करते हैं. डेंसिटी इंप्रूव करने से क्या होता है, उसके जो एनर्जी कंटेंट है वो बढ़ जाता है, बिकॉज अमाउंट ऑफ मैटर is also increased. So pelletization is a process in which waste wood is pulverized. Pulverized मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना. Waste wood is pulverized, dried, and forced under pressure through an extrusion device. You know what is the meaning of extrusion? We have studied in third semester while studying the mechanical working of methods. 2 studies we have studied in detail, like rolling and forging. Extrusion, though extrusion was not in our course, but I taught the extrusion. So you have to imagine the same process here. First of all, we have to go for pulverization, and it is not only the waste wood. Anything which is available from tree, like its fruit, flowers, leaves, branches, stem, and agriculture products, crops residues. उन सबको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांधते हैं, उसी को अपन बोलते हैं पल्वराइजेशन. सो दैट बायोमास इज पल्वराइज्ड, देन ड्राइड. दिस इज डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट. क्योंकि यदि मॉइस्चर होगा तो उसके इसमें जब गुड अपन इसके पैलेट्स को बर्न करेंगे तो प्रॉपर अमाउंट में अपन को हीट नहीं मिलेगी. सो इट इज ड्राइड एंड फोर्स्ड अंडर प्रेशर. उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रूजन डिवाइस के थ्रू बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से जो अवेलेबल बायोमास है उसका डेंसिफिकेशन होता है, डेंसिटी इंप्रूव होती है. ठीक है ना. अमाउंट ऑफ कंटेंट अवेलेबल इन द बायोमास ब्रिकेट और पैलेट्स इज आल्सो इंप्रूव्ड. ठीक है ना. दैट्स व्हाई द एनर्जी कंटेंट इज इंप्रूव्ड. द एक्सट्रैक्टेड मास in the form of pellets. Pellet means rod of 5 to 10 mm diameter. You can imagine
5 mm to 10 mm. That means maximum diameter is 1 centimeter and 12 mm long. Though the definition of this pellet has been written differently in different cases, but almost you can imagine that pellets are having a smaller shape and size. मतलब उसके dimensions छोटे होते हैं और जो bracket होता है उसके dimensions बड़े होते हैं. This when we make pellet, then it facilitates its use in steam power plant and gasification system. Okay. मतलब यदि हम डायरेक्ट बर्न करेंगे लकड़ी को तो शायद हमें उतनी निश्चित तौर पे हमें उतनी हीट नहीं मिलती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, एनर्जी अवेलेबल कम होती है. बट व्हेन वी मेक पैलेट्स इन दैट केस अमाउंट ऑफ मास और बायोफ्यूल इज इंप्रूव्ड. दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन इट इज आल्सो इंप्रूव्ड. एंड वी कैन यूज द पैलेट्स ऑफ ब्रिकेट्स इन स्टीम पावर प्लांट एंड गैसिफिकेशन सिस्टम. Pelletization reduces the moisture to about 7 to 10%, increase the heat value of the biomass. ठीक है. Second is briquette. Pellets और briquettes की जो process होती है almost same है. ठीक है ना. Difference कहाँ पे आता है? Dimensions में आता है, जो कि अपन आगे अगले वाले slide में देखेंगे. Biomass briquettes are made from body metal, agricultural based salt अपन ने अभी देख ही लिया उसको. And it is a replacement for fossil fuels such as oil or coal and can be used to heat boilers in manufacturing plant. ठीक है, power plant also. Burning a wood briquette is far more efficient than burning firewood. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि firewood में डेंसिटी कम होती है. ठीक है ना. हम उसको बर्न करते हैं तो अवेलेबल जो हीट कंटेंट होता है वो कम होता है. बट यदि हम उसी का ब्रिकेट्स तैयार कर दें या पैलेट्स तैयार कर दें तो उस केस में अवेलेबल जो वुड रहती है, वुड का ब्रिकेट है, पैलेट है, तो उसकी हीट कंटेंट या एनर्जी कंटेंट उसका बढ़ जाता है. द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ ब्रिकेट कैन बी एज लो एज 4%. इसमें इतना कम मॉइस्चर हो सकता है. ठीक है ना. वेयर एज फॉर ग्रीन फायरवुड इट मे बी एज हाई एज 65%. ठीक. सो पैलेट्स और ब्रिकेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड्स. ठीक है ना. और एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. ठीक है ना. By pulverization, drying, and then doing extrusion. Expelling agro products. What is the meaning of expelling here? बता सकते हैं आप में से कोई? Expel करना मतलब क्या होता है? क्रश करना अवेलेबल बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को और उनका जूस तैयार करना है. कैन बी ऑयल ऑल्सो. यदि हम किसी चीज के नट को एक्सपेल करते हैं तो उस केस में हमें ऑयल मिलता है. ठीक है ना. जैसे जो हमें सोया ऑयल मिलता है या सरसों ऑयल मिलता है वो एक्सपेलिंग के बाद ही हमको मिलता है वहां पे. तो एक्सपेलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अवेलेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, इट मे बी लीव्स, इट मे बी नट, इट मे बी सीड, उसको हम एक्सपेलिंग डिवाइस के थ्रू पास करते हैं. वहां पर उसकी क्रसिस या कंप्रेशन होता है. कंप्रेशन की वजह से हमें ऑयल लाइक फ्लूइड हमको मिल जाता है. दैट इज यूज्ड फॉर फर्दर पर्पसेस. So concentrated vegetable oils may be obtained from certain agro products and may be used as fuel in diesel engines. ठीक है ना. क्या लिखा है कि जैसे अपन बायोडीजल का अपन नाम सुना हुआ है जो कि ऑब्टेन होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स से, लाइक रतन जोत है. ठीक है ना. और भी दूसरी चीजों, करंज है, उसके थ्रू हमको मिलता है. वह उसमें अवेलेबल जो उसका जो ऑयल होता है वो डायरेक्टली इंटरनल कंबस्शन इंजन में, वेदर इट इज डीजल इंजन, उसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो उसको प्रोसेस करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज ट्रांस एस्टरिफिकेशन. यहाँ भी लिखा हुआ है. सो व्हेन वी go for trans esterification of the product which is available after expelling the agriculture product, then we can obtain the biodiesel type content. So difficulty arise with direct use of plant oil. यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि concentrated vegetable oil may be obtained from agriculture products, but that cannot be used directly because it has high density, high viscosity, and it creates lots of combustion deposits. यदि हम उस ऑयल को सीधे सीधे बर्न करते हैं, कंबस्शन कराते हैं, तो उसके इसमें बहुत सारे डिपॉजिट कहाँ पे आते हैं, इंजन के अंदर आ जाते हैं. एंड दोज डिपॉजिट्स आर हार्मफुल टू द वर्किंग ऑफ इंजन. हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं. देयरफॉर द ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेलिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर अपग्रेडेड बाय अ केमिकल मेथड नोन एज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन. एक प्रोसेस होती है
जिसमें हम उस ऑयल को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, इसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के बाद जो हमको नया ऑयल मिलता है जिसका नाम होता है बायोडीजल, दैट कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग आईसी इंजन। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सोर्सेस आर सीड्स लाइक सनफ्लावर, rapeseed, soybeans that can be used for expelling, or we can use nuts also, oil palm, coconut, copra, jojoba. ठीक है ना, these crops can be used, or nuts can be used for obtaining the uh, oil, which is further processed by trans-esterification, and we can obtain biodiesel type product. Similarly, we can use fruits also, and we can use leaves also. So seeds, nut, fruit, leaves, these can be expelled for obtaining biodiesel, which is a biofuel. ठीक है ना. So in all these three methods, we are using mechanical means either for preparing a pellet or preparing a briquette, which can be further used in thermal power plant, in boilers, either for heating purpose or for creating steam or for other chemical processing purpose. We can obtain oils by expelling the agricultural products like seeds, nuts, fruits, and leaves for obtaining oils. And those oils can be further used after trans-esterification for running IC engine. ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग अनम्यूट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं. नो क्वेश्चन, आगे चलते हैं. ठीक है ना. अभी जो हमने पहली मेथड देखी फिजिकल मेथड, आप ये देखो कि ये जो इसको हम पैलेट्स बोल सकते हैं, इनको हम ब्रिकेट्स बोल सकते हैं क्योंकि लंबे हैं, इनकी लेंथ ज्यादा है, ये ब्रिकेट्स कहला सकते हैं. और ये थोड़े छोटे हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, पैलेट्स बोलते हैं. इसमें हालांकि सिलिंड्रिकल शेप दिखाई गई है, बट इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है ना. नॉर्मली जो पैलेट्स होते हैं, ठीक है ना, वो चौकोर क्रॉस सेक्शनल के एरिया के होते हैं, लेकिन जो पैलेट ब्रिकेट्स होते हैं वो दूसरे क्रॉस सेक्शन के भी हो सकते हैं. तो biomass pellets fuel are made from straw, sawdust, crop stalk, peanut shell, corn cob, rice husk, cotton seed hull, and other agriculture wastes. They appear as cylindrical particles whose diameter is not particles, cylindrical objects whose diameter is about 6 to 8 mm. ठीक है ना. And the length is 4 to 5 times that of the diameter. तो यदि हम इसका डायमीटर 8 mm मानते हैं तो उसकी जो लेंथ होगी 40 mm या 4 सेंटीमीटर के करीब होगी. The water of dry wastes is under 10 to 15% and the ash content is less than 1.5%. ठीक है ना. तो इस केस में चूंकि जो अवेलेबल बायोमास है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था या एग्रीकल्चर बेस्ड था, उसको हमने एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू डेंस बना देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी कंटेंट बढ़ जाता है. इनको ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होता है और इनकी बर्निंग से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे मिलती है. ठीक है. Biomass briquettes fuel are made of crop straw, food materials with lignose, scraps in agricultural processing, forestry residue, animal dung, and other waste material. ठीक है ना. They appear as bars and briquettes. Bar मतलब having cross section other than circle. तो ये cylindrical ऑब्जेक्ट ना होके क्यूबॉइड टाइप के भी कुछ लंबे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं. The diameter of section is between 30 and 40 mm. आप यहाँ पे देखो कितना है, 6 to 8 mm. In case of pallets, its diameter is 6 to 8 mm. But in case of briquette, its diameter is 30 to 40 mm. That is just 5 times of it. Briquettes pallet से 5 times बड़ा होता है briquette. And length is more than 15 centimeter. And the calorific value is this much, 3200 to 4000 kilocalorie. So फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, या तो पैलेट्स तैयार करते हैं या ब्रिकेट्स तैयार करते हैं या उनको एक्सपेल करके ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. दैट ऑयल इज फर्दर chemically processed by trans-esterification process and we can get the biodiesel. So this is one method. Second method is incineration. Incineration is known as combustion.
तो यदि हम किसी चीज का डायरेक्ट कंबशन कर रहे होते हैं तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन बोलते हैं। बट इंसिनरेशन से क्या होता है, वी ऑब्टेन द हीट आफ्टर combustion of the biomass. So incineration means direct combustion of biomass for immediate useful heat. We obtain the heat. जैसे पुराने समय में जो मैनकाइंड अपने इस्तेमाल के लिए लकड़ी को जलाता था, उस केस में वो डायरेक्ट हीट ऑब्टेन करता था। तो ये वही वाली प्रोसेस है, ठीक है। इन दिस केस वी हैव टू बर्न द बायोमास इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. The heat and or steam produced are either used to generate electricity or provide the heat for industrial process, space heating, cooking, or district method. This is a somewhat different method. Actually, in European countries, they require large amount of heat for space heating purpose. That's why it is known as district heating. Otherwise, इसका और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंसिनरेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, जो अवेलेबल बायोमास होता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करा रहे होते हैं या उसको हम जला रहे होते हैं। तो उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, वहां पे सीधे प्रोडक्ट ऑफ कंबशन या हीट हमको मिलती है, एंड दैट इज हीट इज यूजफुल. Furnaces and boilers have been developed for large scale burning of various type of biomass such as wood, wood waste, black liquid from pulp industry. पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको भी बर्न करके यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. फूड इंडस्ट्री वेस्ट and municipal solid waste. Municipal solid waste is sometimes written as MSW. कई बार यहाँ पे आपको MSW लिखा मिलेगा, तो MSW का फुल फॉर्म होता है municipal solid waste. The moisture content in the biomass and wide range of composition tend to decrease the efficiency of conversion. ठीक है. So incineration का मतलब यहाँ पे क्या है कि we are performing combustion of the available biomass and the available heat in this case is utilized for some purpose, and this process is known as incineration. ठीक है. So first method was physical method. In that case either we make pallets or briquettes of the biomass, and we can also go for expelling the agriculture production in order to obtain some kind of oil, which is further chemically processed by transesterification process, and we obtain biodiesel in that case, and that is useful for running internal combustion engine. In incineration, we directly burn the biomass, and available heat is utilized for chemical processing, for space heating, for industrial purposes, and some other purposes also. Okay. Third process is thermochemical. Thermochemical means it is a combination of two words. Thermo, which means use of temperature. Chemical, that means some chemical processes is going on. That's why in this process, we heat the biomass and in such a way that some kind of chemical reaction takes place, and either we obtain oil or liquid, or we go for gasification also. So there are two processes. One is known as pyrolysis, another is known as liquefaction. Here you can see liquefaction. Okay. So basic thermochemical process to convert biomass into a more valuable and convenient product is known as pyrolysis. Biomass is heated either in absence of oxygen or partial combustion of some of the biomass in restricted air is done. What is its meaning? बता सकते हैं आप लोग इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है? हम अवेलेबल बायोमास को कंबस्शन तो कराते हैं, लेकिन वो जो कंबस्शन होता है, दैट कंबस्शन इज डन आइदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मतलब वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी या तो बिल्कुल नहीं रहती है, या बहुत कम होती है, या बहुत कम अमाउंट बायोमास को हम बहुत कम क्वांटिटी एयर के साथ बर्न करते हैं और इसके बाद फर्दर बायोमास उसमें ऐड करते हैं. तो क्या होता है, जो बायोमास की हीटिंग होती है और उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेसिंग होती है, उसकी वजह से कुछ गैसेस इवॉल्व होती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलिसिस. ठीक है ना. सो पायरोलिसिस जो होता है उसमें अवेलेबल बायोमास का इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है. ठीक है ना. हम बहुत कम अमाउंट ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसके साथ साथ जो अवेलेबल बायोमास है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना. और उन गैसेस को हम फर्दर यूटिलाइज करते हैं. The products are three types of fuels
usually a gas mixture of hydrogens, carbon monoxide, carbon dioxide, methane and nitrogen. ठीक है, या तो हमें गैसेस मिक्सचर मिल जाता है. अब ये मिक्सचर है, वी कैन नॉट श्योर दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज जब हम पायरोलिसिस एक्शन करते हैं तो पायरोलिसिस एक्शन के दौरान ये जो गैसियस मिक्सचर बनेगा उसमें CO ज्यादा होगा या CH4 ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो अवेलेबल बायोमास था उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल क्या था. ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्या थे उसके ऊपर ही डिपेंड करता है. और वी कैन ऑब्टेन एन ऑयल लाइक लिक्विड, ऑयल जैसी कोई चीज मिलती है, दैट इज वाटर सॉल्युबल फेज इंक्लूडिंग एसिटिक एसिड, एसीटोन, मिथेनॉल एंड अ नॉन एक्वियस फेज इंक्लूडिंग ऑयल एंड टार. ठीक है ना, तो जब हम बर्न करेंगे, इनकम्प्लीट कंबस्शन कराएंगे या पायरोलिसिस करेंगे तो उसके इसमें बायोमास से हमें गैसियस मिक्सचर मिलेगा या दूसरा ऑयल जैसा कोई चीज मिलेगी. ठीक है ना, तो बोथ कैन बी यूज्ड. ठीक है, सो ऑयल लिक्विड ये भी मिल सकता है, या हमें कार्बन 4 जिसको बोलते हैं कोल, एक कोल से एक अच्छे टाइप का कोल होता है जिसमें कि कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, वो हमके यहाँ पे मिल सकता है. ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, कि उसमें गैस ज्यादा होगी, ऑयल ज्यादा होगा, कार्बन ज्यादा होगा, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ फीड स्टॉक. फीड स्टॉक मतलब बायो मास यूटिलाइज इन द पायरोलिसिस प्रोसेस. द टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हम उसको कर रहे हैं, प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड इट्स ड्यूरेशन एंड द हीटिंग रेट. मतलब जो हमने अवेलेबल बायोमास है उसमें इंग्रेडिएंट्स उसके क्या क्या हैं, उसको हमने किस टेम्परेचर तक गर्म किया है, कितने प्रेशर पे उसको रखा हुआ है, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं और उसका हीटिंग रेट क्या है. इसके बेस पे हमें गैसियस, ऑयल या जो कार्बन 4 है उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल रहती है. यदि हम गैस लेने जा रहे हैं तो गैस में भी इनका इंग्रेडिएंट कितना होगा, हाइड्रोजन, CO, CO2, CH4, वो किस पे डिपेंड करता है, फीड स्टॉक पे डिपेंड करता है, मतलब बायोमास पे डिपेंड करता है. Pyrolysis can process all forms of organic materials. जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इंक्लूडिंग रबर, प्लास्टिक, ठीक है ना, इन सब को हम पायरोलिसिस मेथड के द्वारा गैस में या ऑयल में या कार्बन 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये तीनों हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ठीक है ना, तो इसके ठीक पहले आपने सेकंड प्रोसेस देखी होगी इंसिनरेशन की. इंसिनरेशन का मतलब होता है कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. उस केस में हमें हीट मिलेगी एंड दैट हीट कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड. But in case of thermochemical process, there are two types of processes. One is pyrolysis, another is liquefaction. तो pyrolysis में हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन कराते हैं किसका, अवेलेबल बायोमास का, जिससे कि हमें गैसियस, ऑयल या कार्बन 4 टाइप की चीजें मिल जाती हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलिसिस. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफेक्शन. व्हाट इज लिक्विफेक्शन, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना. लिक्विफेक्शन का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना. सो हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस मतलब लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, हमको मैक्सिमम गैस प्रोडक्ट वहां पे मिल जाता है. एंड प्रोसेस इज नोन एज गैसिफिकेशन. मतलब ये जो पायरोलिसिस है, ठीक है ना, इसका एक और नाम हो सकता है, वो कहलाता है गैसिफिकेशन. बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ये वर्ड गैसिफिकेशन आल्सो कम्स व्हेन वी स्टडी बायोलॉजिकल मेथड्स, केमिकल, बायोकेमिकल. ठीक है ना, तो बायोकेमिकल में भी गैसिफिकेशन आएगा, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गैसिफिकेशन डन इन थर्मोकेमिकल एंड गैसिफिकेशन डन इन बायोकेमिकल. In case of thermochemical, we are doing pyrolysis process. On the other hand, on the other end of biochemical process, we are going for conversion of biomass into biogas like methane. जो कि गोबर गैस प्लांट होते हैं वो भी गैसिफिकेशन. तो ये जो वर्ड है गैसिफिकेशन, इसको बड़ा क्लियरली वाइजली आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पायरोलिसिस में भी इस्तेमाल होता है गैसिफिकेशन और ये बायोकेमिकल प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है. लो टेम्परेचर पायरोलिसिस 1000 तक करोगे तो गैसिफिकेशन हो जाएगा, गैसियस प्रोडक्ट्स हमको मिल जाएंगे. बट यदि हम लो टेम्परेचर पे वही प्रोसेस करते हैं तो उस केस में 4 कंपोनेंट इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है ना,
The process has been used for centuries for production of charcoal. ठीक है. The process is known as carbonization. मतलब कोयला को बनाने के जो प्रोसेस है ये उस टाइप की प्रोसेस है. हम इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे एंड रिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में हमको चारकोल वहां पे मिल जाएगा. A liquid product is obtained through catalytic liquefaction process, and liquefaction is a relatively low temperature, 250 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, high pressure up to 270 atm, thermochemical conversion of wet biomass. Please keep in mind, liquefaction of wet biomass is done, जिसमें एल्गे, सिंथी और बहुत सारे नाम अभी आएंगे. उनको हम क्या करते हैं, लिक्विफेक्शन कराते हैं. उस केस में हमें क्या मिलता है, कुछ ऑयल जैसी चीज मिल जाती है. ठीक है. लिक्विफेक्शन इज अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर 250 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई प्रेशर, thermochemical conversion of wet biomass, usually with high hydrogen partial pressure, and also a catalyst to enhance the rate of reaction and to improve the selectivity of the process. तो दो प्रकार की प्रोसेस थर्मोकेमिकल में इस्तेमाल होंगी. वन इज गैसिफिकेशन, अनदर इज लिक्विफेक्शन. तो यदि हम लिक्विफेक्शन मतलब उसी को वेट बायोमास का हम कम टेम्परेचर पे ज्यादा प्रेशर पे करेंगे तो वो ऑयल में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना. और यदि उसी बायोमास को हम हाई टेम्परेचर पे इनकम्प्लीट कंबशन कराएंगे तो वहां पे पायलिसिस से गैसिफिकेशन हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? यदि कोई डाउट हो तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो. नो इशू. फोर्थ प्रोसेस इज बायोकेमिकल. मैंने आपको पहले ही बताया था बायोकेमिकल मतलब ये जो प्रोसेस होती है दैट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया. The process makes use of metabolic action of microbial organisms on biomass to produce liquid and gaseous fuel. Two major biochemical processes are ethanol fermentation and anaerobic digestion. Anaerobic digestion जो प्रोसेस है वो गोबर गैस प्लांट में इस्तेमाल की जाती है जिसमें मेजर कंटेंट हमको CH4 मिलता है. What is ethanol fermentation? Alcoholic fermentation is the decomposition. Ethanol मतलब एक अल्कोहल है. Alcoholic fermentation is the decomposition in the absence of air. ये जो प्रोसेस होती है ये एयर के एब्सेंस में होती है. So it is decomposition in the absence of air of simple hexose sugars. शुगर के अंदर जो कंपोनेंट्स लैक्टोज, ग्लूकोज वगैरह होता है वैसे हेक्सोज उसका नाम आया हुआ है. So sugar containing 6 carbon atoms per molecule is known as hexose, C6H12O6. ठीक है ना. So it is the decomposition in absence of air of simple hexose sugar in aqueous solution, aqueous मतलब water solution, by the action of an enzyme, natural catalyst. ठीक है ना. Present in yeast in acidic conditions and we obtain ethanol and carbon monoxide. ठीक है ना. तो ये हो गया इथेनॉल फर्मेंटेशन. दूसरी प्रोसेस होती है एनारोबिक डाइजेशन की. इन दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स डिकेइंग वेट बायोमास and animal waste into biogas through the decomposition process by the action of anaerobic bacteria. ये बैक्टीरिया कौन सा होता है? दैट बैक्टीरिया विच लिव्स एंड ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है. तो हम क्या करते हैं, उस गोबर को एक बंद कंटेनर के अंदर डाल देते हैं. फर्मेंटेशन, उसके अंदर बैक्टीरिया का होना जरूरी है और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखा जाता है. तो बैक्टीरिया क्या वहां पे उस बायोमास को खाता है, खाने के बाद गैसेस वहां पे प्रोड्यूस करता है. Carbon present in biomass may be ultimately divided between fully oxidized CO2 and fully reduced CH4. तो इस केस में हमें CH4 की क्वांटिटी ज्यादा मिलती है. The most useful biomass material is animal manure, algae, kelp, hyacinth, plant residue, and other organic waste materials with high moisture content. जब हम गोबर को, काउडंग को, एनिमल वेस्ट को इस एनारोबिक डाइजेशन के अंदर डालते हैं तो हमें एक स्लरी बनानी पड़ती है. उस स्लरी में कुछ अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में मॉइस्चर भी रखना पड़ता है, तो पानी भी वहां पे ऐड करना पड़ता है. ठीक है ना. सो दिस इज अबाउट बायोकेमिकल. सो देयर आर बेसिक 4 मेथड्स
फर्स्ट इज फिजिकल मेथड, सेकंड इज इंसिनरेशन, थर्ड इज थर्मोकेमिकल एंड फोर्थ इज बायोकेमिकल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लगभग 2 मिनट अपने पास बचे हुए हैं। आप में से यदि लोगों को कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज मीटिंग क्लोज करता हूं फिर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? वैसे बिल्कुल सिंपल है, स्पष्ट है, फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन सर? सर इथेनॉल फर्मेंटेशन में बाय प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फर्दर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। देखो तो जब हाँ। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, CO2 बन जाएगी वहां पे। बस अपन एब्सेंस ऑफ एयर में कर रहे हैं ना। हाँ, तो फिर इसी के अवेलेबल उससे रिएक्ट करना पड़ेगा इसको फिर। बिल्कुल सही है। अच्छा। सही है। ओके सर। ऑक्सीजन अलग से नहीं मिलेगी यहाँ पे, बिल्कुल सही है। CO को ही रिएक्ट करना पड़ेगा। और अपन ने जैसे पहले देखिए, जब हम पायरोलिसिस सेक्शन करते हैं तो इसमें क्या रहता है, गैस का जो मिक्सचर है इसमें हाइड्रोजन है, CO, CO2 है, CH4 है। जब हम इसके लिए जाएंगे तो CO मिलोगी, दैट कैन बी यूटिलाइज। एक्चुअली ये जो CHOH होगा, ये कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड ठीक में है ना, होगा सर। ये गैसीय स्टेट में होगा। तो 2 चीजें हमको यहाँ पे मिल सकती हैं वहां पे। ओके और सर। इसका CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और बोलो, एनी अदर क्वेश्चन? बस ये चीज ध्यान रखना कि गैसिफिकेशन वर्ड 2 बार आएगा, एक बार वो पायरोलिसिस में भी आएगा और एक बार इस एनारोबिक डाइजेशन में भी आएगा। तो एनारोबिक डाइजेशन में हमको मेनली CH4 मिलता है, मीथेन मिलती है, लेकिन जब हम पायरोलिसिस करते हैं तो वहां पर मिक्सचर मिलता है, वहां गैसिफिकेशन में मिक्सचर मिलता है वहां पर। ठीक, तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ये कुछ सेकंड्स ही अपने पास बचे हुए हैं।